Today we will talk about light chapter. Reflection and refraction. We start with the reading NCERT. We see a variety of objects in the world around us. However, we are unable to see anything in the dark room. On lighting up the room, the things become visible. What makes things visible during day? The sunlight helps us to see objects, and objects reflects light that falls on it. This reflected lights, when received by our eyes, enables us to see things. We are unable to see through a transparent medium as the light is transmitted through it. There are a number of common wonderful phenomena associated with the light, such as image formation by the mirrors, twinkling of stars, beautiful colors of the rainbow, bending of light by the medium, and so on. As the studies of the properties of the light helps us to explore them. By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in a straight line. The fact that is a small source of light casts a sharp shadow on an opaque object points to this straight line path of the light, usually indicated as a ray of light. ठीक है, तो पहला कुछ जो पैराग्राफ है इसमें ये बताया जा रहा है कि हमको अगर मान लीजिए हम लोग को कुछ दिख पा रहा है तो वो किस तरीका से हो पाता है. ठीक है, अगर कोई डार्क रूम रहा तो वहाँ पर तो हम कोई चीज़ नहीं देख पा रहे, यानी हमको ये पता चल रहा है कि मेरा आँख में कुछ ऐसा नहीं है, मतलब कि फोटो रिसेप्टिव पिगमेंट्स जरूर है, लेकिन हम लोग के आँख के थ्रू डायरेक्टली कुछ नहीं दिख पा रहा है. हम लोग को कुछ दूसरा चीज़ का ज़रूरत पड़ रहा है जिससे हम लोग वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रहा है और तब वो दिखाई दे पा रहा है. ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ये है ह्यूमन आई. ठीक है, तो लाइट रे जो है वो इस पे आके गिरेगा, फिर वापस से जब आके हम लोग के आँख पे आके जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, तब हम लोग का जो आँख का फोटो रिसेप्टिव पिगमेंट्स है, फोटो रिसेप्टिव सेल्स जो है इसको सेंस करेगा और एक इमेज फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ही हम लोग देख पाते हैं. इस तरीका से ह्यूमन देख पाता है. और दूसरा बात यह है कि बहुत सारा अलग अलग लाइट्स के रिलेटेड बहुत सारा फेनोमेनाज है, जैसे कि इमेज का फॉर्मेशन होना या स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कलर्स इनटू रेनबोस, और दूसरा ये है कि लाइट का बेंडिंग होना ड्यू टू रिफ्रैक्शन. ठीक है, दूसरा ये है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये हम लोग कहाँ से देख सकते हैं? ये हम मान लीजिए कि कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है. ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट का फोकस पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा ही शार्प शैडो करता है. मान लीजिए ये लाइट है, लाइट का बीम है, नंबर ऑफ बीम्स है, ये नंबर ऑफ रेज है जो कि लाइट का बीम बना रहा है. ठीक है, इसके बीच में कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट अगर हम रख दिए हैं तो ये प्रॉपरली ब्लॉक्ड हो जाएगा. जो कुछ बीम्स जो रहेगा वो यहाँ से ब्लॉक्ड हो जाएगा और कुछ जो रहेगा वो
स्ट्रेट ही पार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये बीम मुड़ के इधर से पार हो जाएगा। तो इधर से हम ये बोल सकते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आगे, इफ एन opaque object on the path of a light become very small, the light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line. An effect known as diffraction of light. Then the straight line treatment of the optics using ray falls fails. To explain the phenomena such as diffraction, the light is thought of a wave. The details of which you will study in the higher classes again. At the beginning of 20th century, it became known that the wave theory of light often becomes inadequate for the treatment of interaction of light with the matters. The light often behaves somewhat like a streams of particles. This confusion about the true nature of a light continued for the some years till a modern quantum theory of light emerged, in which light is neither a wave nor a particle. The new theory reconcile the particle properties of the light with the wave nature. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नोट लिखा हुआ है। ये बोलता है कि अगर मान लीजिए ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट था ऊपर में, ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये अगर अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि जो पार्टिकल है उसका साइज कुछ ज़्यादा छोटा हो जाए, तब क्या होगा, जो लाइट होगा वो हल्का से बेंड होके वैसे वेव के फॉर्म में पार हो जाएगा। ठीक है, तो जो इस फॉर्म से मान लीजिए कि लाइट जो इस तरीका से यहाँ से टच होके सीधा पार हो जा रहा है, इस फॉर्म ऑफ इसको फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें ये है कि जो स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, ये देखा गया। जो स्ट्रेट लाइन, जो रे एक स्ट्रेट लाइन में जाता है वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसमें तो आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि लाइट अगर एक वेव का फॉर्म है कि आपका लाइट एक पार्टिकल के फॉर्म में है। ठीक है, तो लाइट कभी कभी आपका है कि वेव के फॉर्म में बिहेव करता है। लाइट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ wave or can be in the form of streams of particle, ये stream of particles। ठीक है, तो यहाँ से ये कहानी है। दूसरा ये है, in this chapter we shall study the phenomena of reflection of light and refraction of light using the straight line propagation of a light. The basic concept will help us in the study of some of the optical phenomena in the nature. We shall try to understand in this chapter the reflection of light by the spherical mirror, refraction of a light and their application in the real life situations. ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन पहले आपका कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई रे आया, मान लीजिए कोई रे आया, अब वो स्ट्राइक किया और ये रिफ्लेक्ट बैक कर गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस जिसमें किसी कोई रे आया और रिफ्लेक्ट बैक कर गया, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसके अबाउट
एक नॉर्मल होता है जो कि पैरेलल टू द सरफेस होता है। क्या होता है? नॉर्मल होता है जो कि पैरेलल टू सरफेस होता है। जो लाइट आके स्ट्राइक करता है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है। जो रिफ्लेक्ट बैक करता है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है। The angle between incident ray and the normal is known as angle I, that is angle of incidence. ठीक है। दूसरा क्या है? Angle between normal and reflected ray are called as angle of reflection. ठीक है। आगे अब कुछ लॉज होता है रिफ्लेक्शन के लिए। क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैव टू पोस्टुलेट्स। एक ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा ये है कि द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और एंड नॉर्मल all lies on the same plane। ठीक है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये दोनों एक ही इस पे पड़ता है। क्या बोले? एंगल सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है ये तीनों एक ही इस पे पड़ता है। इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया और क्या? नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन पे पड़ता है। दूसरा ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो हमेशा ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होता है। ठीक है। आगे the laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces, including the spherical surfaces. You are familiar with the formation of image by the plane mirror. What is the property of the image? Image found by the plane mirror is always virtual and erect. The size of the image is always equal to that of the object. The size of the image is equal to that of the object. The image formed is as far as behind the mirror as the object is in front of it. For further, the image is laterally inverted. ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by plane mirror। ठीक है। तो अब कहानी यहाँ पर यह है कि मान लीजिए एक प्लेन मिरर है। ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका हेड है ए और बॉटम है बी। ठीक है। तो जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा वो क्या रहेगा आपका? इनसाइड ऑफ द प्लेन मिरर, यानी आपका ए डैश बी डैश। ठीक है। तो ए डैश बी डैश। ठीक है।
तो इमेज जो रहेगा वो रहेगा वर्चुअल। क्या रहेगा? वर्चुअल रहेगा। और क्या रहेगा? इरेक्ट रहेगा। सेम साइज टू एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा ये है कि distance between the object and the mirror, suppose it is 5 meter, so the distance between the image and the mirror is also will be 5 meter। ठीक है। इसका साइज भी सेम रहेगा, वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा, और जो साइज रहेगा वो सेम रहेगा। दूसरा ये है कि डिस्टेंस जो रहेगा प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में जितना भी डिस्टेंस रहेगा वो सेम डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच में होने वाला है। ये क्या है? जो इमेज फॉर्मेशन है वो बिहाइंड द मिरर है। ठीक है। आगे, द कर्व सरफेस ऑफ द शाइनिंग स्पून could be considered as a curved mirror. The most commonly used type of curved mirror is the spherical mirror. The reflecting surface of such mirror can be considered to form a part of a surface of the sphere. Such mirrors whose reflecting surface are the spherical are called the spherical mirrors। ठीक है। तो अब प्लेन मिरर का बात हो गया, अब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है। स्फेरिकल मिरर तो आपका स्फेयर जैसा होता है, इसीलिए इसको हमको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो असल में मान लीजिए कि स्फेयर अगर है, ठीक है, तो मान लीजिए एक स्फेयर है, एक सर्कल है। अगर हम मान लीजिए इस तरफ से एक कट लगा दिए, ठीक है, तो कट लगाने के बाद जो ये पार्ट जो कट होके आएगा, ग्लास का पार्ट जो कट होके आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल ग्लास पहले बोल सकते हैं। ठीक है। और इसका क्या है? एक सेंटर पॉइंट है। इसका क्या है? एक रेडियस है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम इसके आउटसाइड पे रिफ्लेक्टिंग कर लें तो एक टाइप ऑफ मिरर बनेगा। अगर इसके इनसाइड पे हम कर ले तो अदर साइड ऑफ मिरर, अदर टाइप ऑफ मिरर बनेगा। ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है। और ये बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। दूसरा बात ये है कि ये क्योंकि एक स्फेयर का पार्ट है, तो जो ये स्फेयर का जो रेडियस होगा उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और जो ये स्फेयर का जो सेंटर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट करते हैं। और जो ये स्फेयर का जो सेंटर होगा जिससे ये मिरर बना है उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फोकस का पॉइंट है। क्या है? फोकस। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है। आगे,
ठीक है, ये एक स्फेरिकल मिरर हो गया। इसके विदिन हम एक बीच से एक लाइन पार की है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। एक इमेजिनरी लाइन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस और ये दोनों मीट करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो पॉइंट, ये जो व्यू बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, और फोकस रहेगा एक, और एक क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। सेंटर ऑफ, ये क्या है, फोकस। Distance between curvature, center of curvature and pole is called as radius of curvature. Distance between focus and pole is called as focal length. ठीक है, reflecting surface of a spherical mirror may be curved inwards or the outwards. A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, that is faces towards the center of a sphere, is called the concave mirror. A spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards is called as a convex mirror. The schematic representation of this mirror is shown in figure. You may note in this diagram that back of the mirror is shaded. You may now understand that the surface of the spoon curved inward can be approximated to a concave mirror, and the surface of the spoon bulged outward can approximate it to the convex mirror. Before we move further to the on a spherical mirror, we need to recognize and understand the meaning of a few terms. These terms are commonly used in discussion about the spherical mirror. The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole. It lies on the surface of the mirror. The pole is actually represented by the letter P. The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. This sphere has a center. The point is called the center of curvature of the spherical mirror. ठीक है, तो यहाँ बात हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। जिस चीज का स्फेयर जो सेंटर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, इसके स्फेयर का कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा, जहां से उसका ये सर्कल का जो ये बना है, उसी को हम वही स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर रहेगा, उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। ठीक है, आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लेटर सी से डिनोट करते हैं। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ मिरर, इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, however it lies behind the mirror. In the case of convex mirror, you may note the radius of a sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of a curvature of the mirror. It is represented by the capital letter R. You may note that distance is equal to the radius of curvature. Imagine a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror. This is called the principal axis. ठीक है, remember the principal axis is normal to the mirror at its pole. Let us understand the important terms related to the mirror. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कुछ कुछ पॉइंट की रे ऑफ लाइट जब कन्वेक्स मिरर पे पड़ता है या कॉनकेव मिरर पे पड़ता है, तो वो किस तरीका से रिफ्लेक्शन करवाता है। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लेते हैं रिफ्लेक्शन।
बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, यानी कन्वर्जिंग। कॉनकेव मिरर को हम क्या बोल सकते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अगर ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के आउटसाइड पे सिल्वरिंग होता है। सिल्वरिंग कर दिए कि सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस पार कर देते हैं। ठीक है, क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ रेज आएगा और इस पे आके रिफ्लेक्ट करेगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सब एक कॉमन पॉइंट से पास थ्रू कर जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? फोकस। क्योंकि लाइट को एक पॉइंट पे आके फोकस कर दे रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, यही चीज आपका डाइवर्जिंग मिरर यानी आपका कॉन्वेक्स मिरर में अलग है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन बाय कॉन्वेक्स मिरर यानी डाइवर्जिंग मिरर। क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो क्योंकि इसका आउटवर्ड में ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और इसके भी सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पार होगा जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, और अगर नंबर ऑफ लाइंस आके इसके पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। ठीक है, ये सब लाइट रे जो है ये डाइवर्ज बैक, रिफ्लेक्ट बैक कर जा रहा है। ठीक है, और ये अपीयर करेगा कि ये फोकस से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड कर रहा है, तो इसलिए हम इसका नाम क्या दिया है? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, आगे ये द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज बाय एन लार्ज स्फेरिकल
The surface then has a circular outline. The diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called the aperture. The distance between m and represent the aperture. ठीक है, तो अब ये मान लीजिए ये जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लेंस है इसको एम एम एन ले लिया, दूसरा को क्या ले लिए, एन ले लिए। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, अपर्चर बोल रहे हैं। We shall consider our discussion only such spherical mirror whose aperture is much smaller than its radius of curvature. ठीक है, अब हम कुछ रिलेशंस का बात कर लेते हैं, रिलेशंस बिटवीन रेडियस एंड फोकस। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर is 2 times of focal length. That is represented by small f. So r is equal to 2f. Or if we have to find the focal length, we can use r by 2. ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग। रे डायग्राम कैसे, एक कंडीशन ये है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो कुछ फीचरिस्टिक पॉइंट्स सब बताएंगे। एक है array parallel to the principal axis ठीक है, तो array parallel to the principal axis, पहला कंडीशन इधर बताते हैं, दूसरा ठीक है, जिसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करता है। क्या बोले, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पासेस फ्रॉम फोकस। पैरेलल है, ठीक है, और यही अगर हम देखें ये है कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स। ठीक है, सिल्वरिंग दिस साइड होगा। अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन spread out and it appears to come from focus of that mirror। ठीक है, दूसरा a ray
passing through principal focus। ठीक है, तो यहां पर भी दो कंडीशन है, एक कॉनकेव का कंडीशन है, एक कॉन्वेक्स का है। ठीक है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास थ्रू करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई लाइट रे इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस इंसिडेंट होता है कॉन्वेक्स मिरर में, अगर कोई लाइट रे इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस इंसिडेंट होता है कॉन्वेक्स मिरर पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाता है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दूसरा तीसरा मतलब एक पॉइंट ये है कि a ray passing through the a ray passing through center of curvature। ठीक है, तो एक टाइप इधर है कॉनकेव के लिए, और एक है इधर कॉन्वेक्स। ठीक है, ठीक है, तो कहानी यहाँ पर ये है कि फोकस इधर है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस इधर है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो अगर कोई लाइट रे पास थ्रू करता है फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर and strike on the mirror, after reflection it traces back its own path। मतलब कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास थ्रू होके कॉनकेव मिरर को स्ट्राइक करता है, तो वो अपना ही पाथ को वापस से ट्रेस बैक करेगा, यानी अपना ही जो पाथ था उसी में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के कंडीशन में क्या है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन पे स्ट्राइक करता है मिरर को, अगर ये स्ट्राइक करता है मिरर को इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपने ही पाथ पे ट्रेस बैक कर जाएगा, अपने ही पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट है, अ रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिंपली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को दोबारा से बताया जा रहा है।
ठीक है। अगर कोई अगर कोई लाइट रे आके पोल पे स्ट्राइक करता है तो वापस ही वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा। और कहानी सिर्फ ये है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रहेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो रहेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बराबर रहेगा। ठीक है। इसमें भी अगर कोई स्ट्राइक करेगा तो ये वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सेम रहेगा।